नमस्कार, मैं हूं रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दानह के पंचायत चुनाव में कांग्रेस की बहुमतों से हुई जीत। वापी में दिन दहाड़े लाखों की लूट कर फरार हुए लुटेरे। नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाला युवक दमन पुलिस के कब्जे में। और डीएमसी मॉडल स्कूल की अव्यवस्थाओं को एसपी दमनिया ने किया उजागर। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दादरा नगर हवेली में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। नए सीमांकन के मुताबिक दादरा नगर हवेली के एकमात्र जिला पंचायत के चुनाव में भाजपा की हार देखने को मिली और पुनः जिला पंचायत पर कांग्रेस ने भव्य जीत हासिल कर ली। 20 सीटों वाली जिला पंचायत पर आयोजित हुए चुनाव में 14 सीटों पर कांग्रेस ने और 6 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की। वहीं ग्राम पंचायत पर कांग्रेस 12 और भाजपा ने 8 ग्राम पंचायतों पर अपना कब्जा जमाया। बता दें कि दादरा नगर हवेली के कराड़ स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना को लेकर सुबह से ही कॉलेज के बाहर भाजपा एवं कांग्रेस के समर्थक बड़े ही आतुरता से परिणाम की राह देख रहे थे। इस दौरान कांग्रेस के पक्ष में परिणाम घोषित होते ही समर्थक काफी उत्साह में नजर आए, जिसके चलते कहीं खुशी कहीं गम जैसा माहौल देखा गया। गौरतलब है कि जिला पंचायत पर इस चुनाव से पूर्व भाजपा का शासन स्थापित था, जिसमें भाजपा के पास 11 में से 8 सीट के साथ स्पष्ट बहुमति थी, जबकि अब इस चुनाव में जनता ने जिला पंचायत से भाजपा को हटाकर पुनः कांग्रेस को बिठा दिया है। लिहाजा बहुमति से जीत हासिल करने पर प्रदेश कांग्रेस द्वारा भव्य विजय रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थक रैली में शामिल हुए और सभी युवा डीजे की धुन पर नाचते झूमते हुए जीत की खुशियां मनाते नजर आए। वहीं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रैली को घुमाकर मोहन डेलकर के निवास स्थान पर संपन्न किया गया, जहां पर समर्थकों ने इस जीत के लिए मोहन डेलकर और उनके परिजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। इस जीत को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन डेलकर ने आगामी समय में प्रदेश में केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को लागू कर विकास के पंथ पर प्रदेश को आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाया है। પ્રદેશની જનતાનો તો મેં પહેલા તો એમનો આભાર માન્યો કે એમણે અમારી પાર્ટી પર વિશ્વાસ મૂક્યો। અમે જે એજન્ડા લઈને ગયા હતા, અમે જે બાબતો લઈને એમના વચ્ચે ગયા હતા અને જે ખાતરીઓ આપી હતી તે સમસ્યા હલ કરવાની, એને લોકોએ માન્ય રાખ્યું એમ માનું છું અને એટલા માટે હું એમનો સૌપ્રથમ આભાર માનીશ। બાકી અમે જે વચનો આપ્યા હતા, જે વિશ્વાસ લોકોને આપ્યો છે એમાં ખરા ઉતરવાની અમે પૂરેપૂરી કોશિશ કરશું અને મેં આ વખતે લોકોને અને અમારા કાર્યકર્તાઓને કીધું હતું, ખાતરી આપી હતી કે જિલ્લા પંચાયતના કાર્યશૈલીમાં યા કાર્યપદ્ધતિમાં અમે સીધું ધ્યાન આપીશ, તાકી કોઈ સાથે ભેદભાવ નહીં થાય, કોઈ ભ્રષ્ટાચાર નહીં થાય। ભારત સરકારની જેટલી પણ યોજનાઓ છે એ યોજનાઓનો સંપૂર્ણ લાભ લોકો સુધી પહોંચે, કોઈ પણ જાતના ભ્રષ્ટાચાર વગર, પૈસાના મિસયુઝ વગર, એ અમારો મુખ્ય મુદ્દા છે। સાથે સાથે મેં જોયું કે નौजवानोના ઘણા મુદ્દાઓ છે જે હલ કરવા ખૂબ જરૂરી છે અને એમાં ખાસ કરીને જે સ્થાનિય અમારા લોકલ શિક્ષિત બેરોજગારો છે એમને એવું ફિલિંગ હતું કે અમને નોકરી નથી મળતી સ્થાનિય લોકોને, એ મુદ્દો મારા માટે મહત્વનો છે। એના માટે અમે
જ્યાં જરૂર પડે તે ઓથોરિટી પાસે અહીંયાથી દિલ્હી સુધી રજૂઆત કરીને પણ સ્થાનીય લોકોને એમાં લાભ મળે, સ્થાનીય લોકોને નોકરી મળે, એ પણ અમારો એક મુખ્ય મુદ્દો છે. સાથે સાથે મેં લોકોને પણ ખાતરી આપી હતી કે ભારત સરકારે જે કાયદો પસાર કરેલો છે સસ્તો અનાજનો, જેમાં 3 રૂપિયા કિલો ચોખા, 2 રૂપિયા કિલો ઘઉં અને 1 રૂપિયા કિલો ઘઉંનું, 1 રૂપિયા કિલો જવાર નાગલીનું પ્રાવધાન છે, એ કાયદાનો અમે તાત્કાલિક અમલ કરવા માટે અમે પગલાં લેશું, એના માટે નિર્ણય કરશું. અને જે કંટ્રોલનો મુદ્દો છે, આ આદિવાસી વિસ્તાર છે, હજુ સુધી અહીંયા બેંક કે બીજી કોઈ વ્યવસ્થા નથી, એટલે અમે કંટ્રોલ ચાલુ રહે એ અમારો મુખ્ય મુદ્દો છે. અને કંટ્રોલની સંખ્યા વધે, ધારો કે એક ગામમાં 1 કંટ્રોલ હશે તો 2 કંટ્રોલ થાય, 3 થાય, એ અમે કંટ્રોલનો વધારો કરશું. અને સાથે સાથે ભારત સરકારે જે કાયદો પસાર કરેલો છે કોંગ્રેસની સરકારે, એ કાયદા મુજબ સસ્તો અનાજ આપવાનું કામ કરશું. જંગલ જમીનનો પણ મુદ્દો હલ થાય એના માટે પણ અમે પગલાં ભરશું. ગામડામાં જ્યાં પીવા પીવાના પાણીની આજે પણ અવ્યવસ્થા છે, અધૂરી છે, એ વ્યવસ્થા અમે પૂરી કરશું. આવાસ યોજનામાં પણ મેં જોયું છે કે ભેદભાવ થયો હતો, એમાં પણ અમે બિલકુલ આવાસ યોજના એવી રીતે લાગુ કરશું કે જેમાં ભેદભાવ બિલકુલ નહીં હોય. જે ન્યાયથી કામ કરવાનું જરૂર પડશે એ રીતે અમે કામ કરશું. અને જે જરૂરિયાતમંદ લોકો છે કે જેને ખરેખર ઘરની જરૂર છે, આવાસની જરૂર છે, એવા લોકોને ઘર મળે એના પર પણ પૂરેપૂરું ધ્યાન આપવામાં આવશે. સાથે સાથે વીજળીના પણ ઘણી સમસ્યા છે, એના માટે પણ અમે રજૂઆત કરશું. તો કુલ મળીને જેટલી પણ અમે ચૂંટણી દરમિયાન લોકોને ખાતરી આપી છે, એ ખાતરીમાં પૂરેપૂરા ખરા ઉતરવા માટે અમે સંપૂર્ણ અમારા પ્રયાસ હશે અને સંપૂર્ણ લોકોને ખાતરી આપીશું. वहीं जिला पंचायत पर अपनी सत्ता खो देने वाले भाजपा सांसद नटू पटेल ने भी चुनाव परिणाम को स्वीकार करते हुए जिला पंचायत में विकास के मुद्दे पर अपना संपूर्ण साथ सहकार देने की बात कही. चुनाव में हमारे सारे मैंडेट पे जितने जो कैंडिडेट चुनाव लड़े थे और जनता ने जो सोच के जिसको जिताया है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे 6 जिला पंचायत चुनकर आई है और 8 हमारे सरपंच चुनकर आए हैं और कांग्रेस के 12 और 14 सीट ये जिला पंचायत के आए हैं. तो मैं मानता हूँ ये प्रदेश के अंदर जो हमने विकास के जो काम किए थे और लोगों ने जो मैंडेट, लोगों ने जो चुना है और लोगों ने जिसको भी चुनकर दिया है, मैं ये प्रदेश का MP हूँ और जो जिला पंचायत बैठेगी, जो भी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, उनको विकास के लिए मेरा पूरा साथ और सहयोग, मेरा पूरा सपोर्ट मैं दूंगा. दिल्ली में मेरी सरकार है, यहाँ का मैं MP हूँ और मैं जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जिन लोगों ने मेरे साथ रहकर जितनी मेहनत की है, उनको भी मैं बोलूँगा कि भाई इसमें हार जीत होती है, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है. चाहे जिला पंचायत चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव आते हैं, वो चुनाव के अंदर सब चलता रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं. लेकिन दादरा नगर हवेली में जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी की थी, उसमें हमने काफ़ी विकास के काम किए हैं और आने वाले दिनों में वो ही काम बरकरार रहने चाहिए. और मेरे को ये दुख है कि ये कांग्रेस के हाथ में गए तो ये लोग काम रोक देंगे, इसलिए ये काम रोकने नहीं दूंगा मैं. और जनता का काम, पूरा विकास का काम होना चाहिए. ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि जनता का विकास हो और गांव-गांव का रोड, रास्ता, लाइट, पानी का काम हो. वापी में एक कार चालक से दिन दहाड़े 2,70,000 नकदी की लूट किए जाने की घटना प्रकाश में आई है. दरअसल सिलवासा के किलौनी नाका पर राजलक्ष्मी ज्वेलर्स मौजूद है, जिसके मालिक मनोज ओझा अपनी I-20 कार में सवार होकर सोमवार को वापी में वसूली करने आए थे. ऐसे में शाम करीब 5 बजे वसूली कर मनोज ओझा जब वापस सिलवासा की ओर जा रहे थे कि तभी GIDC 4 रास्ते पर महाराष्ट्र पारसिंग की पल्सर बाइक पर सवार 2 युवकों ने उनकी कार के सामने आकर किसी बात को लेकर कहासुनी करते हुए उन्हें अपनी बातों में उलझा दिया. इसी बीच बाइक सवार दूसरे युवक ने कार का शीशा तोड़कर 2,70,000 नकद से भरी बैग छीन ली और दोनों ही मौके से फरार हो गए. जहां इस बात की जानकारी मनोज ओझा द्वारा तुरंत ही वापी टाउन पुलिस को दी गई, जिसके चलते पुलिस भी मौके पर आ पहुंची और फौरन नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी गई, लेकिन अज्ञात लुटेरों का कोई पता नहीं लग पाया. बहरहाल वापी टाउन पुलिस इस मामले की फरियाद दर्ज कर अधिक तहकीकात में जुट गई है.
ये मेरे कजन ब्रदर है, सिलवासा इनका ज्वेलर्स का काम है। उनका उगरानी पे उनका लड़का आता रहता है सिलवासा, और यहाँ पर उगरानी करके वो अफसाना मार्केट से सिलवासा की ओर लौट रहा था। इतने में डीसीबी बैंक और इधर ये बिल्डिंग के बीच में मार्बल पार्क के 2 लड़कों ने पीछे से गाड़ी पे कुछ मारा और बोला कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पीछे लगा है किसी को। और यहाँ स्काईलॉन बिल्डिंग के पास उसको जबरदस्ती रुकवाया और बोला तुम चलो पीछे झट के देखो। तो गाड़ी से उतरा और गाड़ी उसने लॉक किया और घबरा गया और पीछे थोड़ा चला 50-100 कदम। इतने में आगे का कांच तोड़ के जो दूसरा बाइक पे था उसने वहां से बैग उठा लिया और कितने पैसे था? 2,70,000 रुपया कैश था और पैसे से भरा हुआ जो उसके साथ था वो भी लड़का उसमें बैठ के दोनों लड़के भाग गए। दमन के कच्चीगाम क्षेत्र से अगवा हुई नाबालिग लड़की को बिहार से बरामद किया गया। दरअसल कुछ दिनों पूर्व दमन के कच्चीगाम विस्तार से एक नाबालिग लड़की का अपहरण किए जाने का मामला कच्चीगाम आउटपोस्ट में दर्ज करवाया गया था, जिसके तहत आगे की जांच पड़ताल शुरू की गई थी। इसी बीच मोबाइल कॉल्स ट्रेसिंग के जरिए लड़की के बिहार के गया जिले में होने की खबर मिली थी, जिसके चलते दमन पुलिस की एक टीम को बिहार के लिए रवाना किया गया, जहां पर बिहार पुलिस की मदद से नाबालिग लड़की और उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाले युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि दूसरी तरफ इस मामले को प्रेम संबंध के रूप में भी देखा जा रहा है। बहरहाल दमन पुलिस इस मामले की अधिक तफ्तीश में जुट गई है। थोड़े दिन पहले हमारे कच्चीगाम में चौकी क्षेत्र से एक कंप्लेंट मिला था, जिसमें एक लड़की का किडनैपिंग हुआ था, ऐसा कंप्लेंट हमें मिला था, जो कि 14 साल की लड़की थी। उस केस में हमने आगे का इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमें जो फोन कॉल मिले थे उसका हमने लोकेशन ट्रेस किया, तो हमें बिहार के गया जिले से मिला। उस दौरान हमने हमारी एक टीम रेडी की और बिहार भेज दी थी, जो कि वहां पे जाके हमें पता चला कि बिहार के गया क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में गांव का लोकेशन आ रहा था। वहां से हमने लोकल पुलिस से मदद लिया। एक दिन तक हमारी टीम ने वहां पे कार्रवाई की। उसके बाद बिहार पुलिस और दमन की लोकल पुलिस ने मिलके लड़का लड़की दोनों को पकड़ के हम आज ही दमन लाए हैं इनको। वहां पे तो हमारी लोकल लैंग्वेज में हमने सब पेपर करके भेजा था। उस दौरान बिहार पुलिस ने थोड़ा जो कि हमने जो लोकेशन ट्रेस किया था उसमें तुरंत नहीं, पर थोड़ी बहुत हमें वहाँ पे स्टाफ को दिक्कतें आई। उनको हमारी टीम के साथ चलने में थोड़ी बहुत उन्होंने वेरीफाई किया, उसके बाद दोनों ने मिलके कार्रवाई की। ये लड़का लड़की को चाहता था ऐसा था, पर लड़की की अभी उम्र 14 साल ही थी महज, तो उसके तहत वो लड़की को बहला फुसला के ले गया हो, इस तरह का सामने आया है मामला। अभी लड़के ने तो यहाँ उसके पास में ही कंपनी में काम करता था, उसे ही लेके चला गया, उससे लव अफेयर है उसका कहना है। नानी दमन स्थित नगरपालिका की मॉडल स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि दमन प्रशासन द्वारा पिछले अगस्त महीने में ही इस मॉडल स्कूल का उद्घाटन कर पुरानी नगरपालिका स्कूल को स्थानांतरित किया गया था। नगरपालिका काउंसिलर एसपी दमनिया के मुताबिक इस स्कूल में कुल 785 छात्र पढ़ाई करते हैं, जिनके लिए शिक्षा विभाग द्वारा सिर्फ 11 शिक्षकों को ही स्कूल में उपलब्ध किया गया है। ऐसे में इन दिनों चल रही परीक्षा के तहत एक कक्षा गृह में 85 छात्र परीक्षा दे रहे हैं, जबकि एक कक्षा गृह में सिर्फ और सिर्फ 21 बेंच होने के कारण 3-3 छात्र एक बेंच पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि कई छात्रों को नीचे बिठाया जा रहा है, जो दमन प्रशासन के लिए काफी शर्मजनक बात मानी जा रही है। जहां इन सभी समस्याओं का कारण मुख्य रूप से शिक्षकों की कमी है, जिसमें नगरपालिका शिक्षा अधिकारी योगेश मोडासिया की भी लापरवाही उजागर हुई, जिसके चलते छात्रों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ सकता है। लिहाजा इस मुद्दे को लेकर प्रशासन को किसी अधिकारी की नियुक्ति या कमेटी का गठन किए जाने की आवश्यकता है। वहीं शिक्षा विभाग अपना ध्यान केंद्रित करते हुए जल्द इस स्कूल में शिक्षकों को उपलब्ध करवाए, ऐसी अपील की गई। प्रशासन ने मॉडल स्कूल शिफ्ट किया था। आप देखोगे कस्टम में 6, 7, 8 स्टैंडर्ड था। वो जो स्कूल था बहुत छोटा था और एकदम कंजेस्टेड था। तो मैंने प्रशासन को जान की थी और 14 अगस्त को उन्होंने यहाँ पे 17 अगस्त को उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया। और ये स्कूल और जो पर्यटन भवन में थी वो मॉर्निंग स्कूल है, तो वो जो बच्चे थे इंग्लिश मीडियम के यहाँ पे शिफ्ट बहुत सुंदर स्कूल बनाए
इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं, बेंचेस भी नए लाए हैं, बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं पहली बात तो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को, कलेक्टर को, डीसी को और एजुकेशन टीम को बधाई देता हूँ कि ये एटलीस्ट स्टार्ट हुआ, जो एक बहुत बच्चों की मांग थी, क्योंकि आप नीचे बैठ के पढ़ते थे। लेकिन अभी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खास करके टीचर्स को फेस करनी पड़ती है कि 786 स्टूडेंट्स शिफ्ट कर दिए गए हैं, लेकिन खाली आपको बता दूं 11 टीचर्स हैं, एक प्रिंसिपल है उसमें। आप बताओ कि कैसे हम लोग बच्चे को तालीम देंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, बहुत अच्छा है, नो डाउट, मैं आभारी होता हूँ, लेकिन प्रशासन को मैंने रिक्वेस्ट किया है कि एक कमेटी बनावे और कल जब ये स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में आएंगे, आज आए हैं, आज तो टाइम नहीं होगा उनको, लेकिन कल आवे और स्पेशली चेक करें और वो कमेटी रिपोर्ट करे कि ये क्या है। आप देखोगे 21 बेंचेज है यहाँ पे और 85 स्टूडेंट्स एक क्लास में एग्जाम दे रहे हैं, 86 स्टूडेंट्स, और 3 स्टूडेंट्स एक बेंच पे बैठे हैं और बाकी नीचे बैठे, नंबर लिख के फ्लोर पे और नीचे बैठ के स्टडीज कर रहे हैं। ये आई थिंक ये तो इतना बड़ा मॉडल स्कूल का नाम और इस तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह टीचर्स हो गए, शर्मजनक बात है। प्रशासन को मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आज के आज अपॉइंट कर लो, लेकिन कहाँ पे टीचर्स ज़्यादा है, जैसे मोती रमन में है, वो अभी आई थिंक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फाइल पिकअप की है, लेकिन हमारे जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, खास करके मुदस्सिर साहब से उनकी मेरी पर्सनली बात भी की है, वो फाइल पे लेके बैठ गए हैं। अब ना मूवमेंट कर रहे हैं वो फाइल का, ना वो अपॉइंट कर रहा है, ना कोई प्रक्रिया कर रहे थे करके। ये इमीडिएटली उन प्रोबेशन पे दूसरे क्लासेस है, बेंचेस है, तो उस पर एग्जामिनर होता है जो कुछ कंडक्ट करे। इलेक्शंस का होता है माहौल, तो इलेक्शंस के लिए पूरा डिपार्टमेंट आ जाता है और कोई प्रॉब्लम होती है तो पुलिस फोर्स आ जाती है। तो हमारे बच्चों को क्या है, वो एजुकेशन इग्नोर करेंगे हम? नहीं, इसको इग्नोर नहीं कह रहे, वो तो ग्रासरूट्स है। हमें इतने फंड आते हैं तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी बच्चे उसको राइट तालीम मिले। और तो टीचर्स गुरु होता है, अगर टीचर्स 21 रूल है कि पर स्क्वायर फुट 1 मीटर में एक बच्चा होना चाहिए, मीन्स 30 स्टूडेंट्स एक क्लासरूम में होना चाहिए, तो वो हिसाब से टीचर्स भी होनी चाहिए। अगर 786 से डिवाइड बाई 30 करो तो कितने टीचर्स चाहिए? हमारे पास टीचर्स नहीं है। तो ये पहला कदम है कि कोई भी हो, बाकी सब काम छोड़ दे और एक ऑफिसर को नियुक्त करें। और टीचर्स कहाँ से लाने हैं? कॉन्ट्रैक्ट पे लाने हैं, रिक्रूट करने हैं, या कहीं स्कूल्स में, मोदी नंबर में स्कूल्स है, बहुत सारे स्कूल्स है, वहाँ पे 80 स्टूडेंट्स हैं और दूसरी स्कूल है 90 स्टूडेंट्स है, और वहाँ पे आपको बता दूँ कि 11 टीचर्स है, 80 स्टूडेंट्स के बीच में 11 टीचर्स और 90 स्टूडेंट्स में 12 स्टूडेंट्स, और 5 तो कॉन्ट्रैक्ट पे है। वहाँ पे म्यूजिक टीचर है, आर्ट्स टीचर है, साइंस टीचर है, कंप्यूटर टीचर है, लेकिन यहाँ पे कोई टीचर ही नहीं है। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करने का फायदा क्या है? खाली दिखावा है? ये नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में जाती नहीं, फाइल नहीं जाती है। मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जागे, पूरा डिपार्टमेंट एक सक्षम बने, बाकी काम बाद में। पहले हमारे राइट से एजुकेशन वी कैन नॉट प्ले विद द हैंड्स ऑफ द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन। उनको राइट एजुकेशन का और वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, किसी हालत में देना पड़ेगा, और इनका फर्ज है वो बात। वापी में मंगलवार को पंचवटी गौरव नामक शुद्ध शाकाहारी होटल का शुभारंभ किया गया। यह होटल वापी जीआईडीसी के फॉर्च्यून मॉल में स्थित है, जहां इस होटल के शुभारंभ अवसर पर वीआईए प्रमुख योगेश काबरिया, लायंस इंटरनेशनल के केतन जोशी और आरके देसाई कॉलेज के ट्रस्टी मिलन देसाई को मुख्य अतिथि के रूप में खास आमंत्रित किया गया था, जिनकी उपस्थिति में पंचवटी गौरव होटल का विधिवत उद्घाटन किया गया। बता दें कि बेंगलोर, उज्जैन और मुंबई के बाद गुजरात के वापी शहर में इस होटल की शाखा शुरू की गई है, जिसमें शांत वातावरण के बीच ग्राहकों को सुंदर सुविधा और बैठक व्यवस्था के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन भी उपलब्ध करवाया जाएगा, जहां भोजन में 2 स्वीट एवं 2 प्रकार की सब्जी मिलाकर अनलिमिटेड भोजन का लाभ ग्राहकों को मिल पाएगा। આજે નવું સાહસ કર્યું એ બદલ એમના માલિક દર્શકભાઈ અને દિલીપભાઈને બંનેને હાર્દિક અભિનંદન પાઠવું છું। બીજું આપણે આપણીમાં પંજાબી રેસ્ટોરન્ટ તો ઘણા હતા અને સ્પેશિયલી આપણે જે ગુજરાતી લોકોની થાળી માટે જે આપણે વપરાય છે, આજે એક પેપીલોન, પછી આપણે ગ્રીનવ્યુ ને એવું હતું તોરલને, પણ આજે પંચવટી ગૌરવ જે ઘણી જગ્યાએ ચેન છે મોટી, અને બોમ્બેમાં ને બધે બહુ સક્સેસફુલ વર્ષોથી ચાલે છે। એમને આ વાપી જેવા ગામમાં લઈ આવ્યો, હું આ બંને મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને ખૂબ સારી આ ચાલે અને ખૂબ ખૂબ એવી રીતે શુભેચ્છા પાઠવું છું અને વાપીની જનતાનો ખૂબ સારી રીતે લાભ લે એવી અપેક્ષા રાખું છું। સૌપ્રથમ તો આજે પંચવટી ગૌરવનું જે ઉદ્ઘાટન થયું છે એ બદલ દિલીપભાઈ અને
દર્શકભાઈને ખાસ અભિનંદન આપું છું. જ્યારે બી હું મહારાષ્ટ્ર પ્રવાસે હોઉં છું, ખાસ કરીને શિરડી, પુના કે નાસિક, ત્યાં પંચવટી ગૌરવની થાળી ખાવાનું એક ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે. અને સ્પેશિયલ અમે લોકો એક થાળી ખાવા માટે પ્રિફર કરતા હોઈએ છીએ. બોમ્બે હોસ્પિટલની બાજુમાં પણ પંચવટીની એક શાખા છે અને ત્યાં પણ ખૂબ સારી થાળી મળે છે. અને હું આશા રાખું કે એવી સારી થાળી વાપીમાં પણ અહીં આપણને મળશે. અને વાપીમાં જે આ સગવડતા પ્રાપ્ત થઈ છે એ બદલ ખરેખર વાપીની જનતા પણ ખૂબ લકી છે. પંચવટી ગૌરવ નાસિકની બ્રાન્ચ છે, ચેઇન રેસ્ટોરન્ટ છે. બેંગ્લોર, ઉજ્જૈન, મુંબઈમાં 5 છે, નાસિકમાં છે, સિન્નરમાં છે, બધી જગ્યા પર છે. ચેઇન રેસ્ટોરન્ટ છે. વાપીમાં આપણી ગુજરાતમાં પહેલી ફ્રેન્ચાઇઝી છે. વાપીની જનતાને આપણે સારી ક્વોલિટી આપવા માટે આ લીધેલ છે. એમાં 2 સ્વીટ, 4 સબ્જી, 2 ટાઈપ ઓફ રાઈસ, રોટી અનલિમિટેડ છે અને ટોટલ A1 ક્વોલિટી આપવાની છે આપણે. અમારા ખાસ મિત્ર દિલીપભાઈ પટેલ અને એમના સન રાજ પટેલે આ એક નવું સાહસ અમારા મોલમાં પંચવટી ગૌરવની ગુજરાતી થાળી ફેમિલી રેસ્ટોરન્ટ કરી છે. ખૂબ ખૂબ શુભકામના અને ખૂબ સુંદર રેસ્ટોરન્ટ બનાવી છે, એના માટે હાર્दिक शुभकामनाएं. दमन की भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्षा फाल्गुनी पटेल ने मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की. बता दें कि फाल्गुनी पटेल ने प्रदेश के विकास आयुक्त एवं स्वास्थ्य सचिव संदीप कुमार से मुलाकात कर कई मुद्दों पर उनका ध्यान केंद्रित करवाया. इस दौरान मुख्य रूप से प्रदेश में बढ़ रहे डेंगू के मामलों के मद्देनजर दमन के सभी क्षेत्रों में मच्छरों का उपद्रव रोकने हेतु दवाई के छिड़काव की मांग की गई. साथ ही देवका और जमपोर बीच पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाने की बात भी कही गई. इसके अलावा दमन के सभी 24 गांवों में घर घर शौचालय बनाने का मुद्दा भी उठाया गया. वहीं स्वास्थ्य विभाग में नर्सों की भर्ती में स्थानिकों को प्राथमिकता देने की मांग भी की गई है. जहां इन सभी मुद्दों पर गौर करते हुए जल्द निवारण का संदीप कुमार ने फाल्गुनी पटेल को आश्वासन दिया है. आज हमने डीसी साहब से मुलाकात की है. जो हम लास्ट सैटरडे को आए थे, वो दिल्ली गए थे, तभी हमने उन्हें आवेदन पत्र दिया था डेंगू के मामले में. तो हम आज उनसे मुलाकात करने आए. तो हमें उनसे काफ़ी आश्वासन मिला है. उन्होंने दवाई का छिड़काव तो चालू कर ही दिया था, लेकिन अभी उन्होंने वापस हमें बोला है कि हम पूरी तरह से सभी गांव की काळजी करके सभी जगहों पे जहाँ कीचड़ वगैरह है, गटर वगैरह है, वहाँ मच्छरों के लिए दवा का छिड़काव करेंगे. और जैसे कि कच्ची गांव में बहुत ही ये डेंगू की वजह से एक आदमी की मृत्यु हुई है, तो वहाँ उन्होंने खास तौर पे बोला है कि हम वहाँ भेज देंगे जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, और वहाँ मच्छरों के लिए वो दवाई वगैरह छिड़काव करेंगे. और एक मरवट गांव है, वहाँ भी उन्होंने सरपंच का कांटेक्ट नंबर दिया है. वहाँ भी डेंगू की असर हो गई है 2-3 पेशेंट को, तो वहाँ भी वो लोग भेजेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, और वहाँ भी मच्छर के लिए वो दवाई का छिड़काव वगैरह करने वाले हैं. और वहाँ आज हमने एक दूसरा भी मुद्दा रखा कि अपना जो जमपुर बीच है, देवका बीच है, वहाँ पर जो टूरिस्ट लोग आते हैं तो उनके लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था लेडीज लोग के लिए खास कर तौर पे की जाए. तो उन्होंने हमें वहाँ भी अच्छा प्रतिकार दिया है. उन्होंने बोला है कि हम वो भी काम चालू ही कर दिया है, वो भी हो जाएगा. और बाकी दूसरा भी एक मुद्दा था कि अपना जो सब 24 विलेज है उसमें टॉयलेट्स के लिए जो घर घर होनी चाहिए, तो हमने उनके लिए भी बात की. तो उन्होंने बोला कि वो भी काम चालू ही है. तो हमें आज बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला उनकी तरफ से, और काफ़ी वो लोग भी काम कर रहे. तो और उन्होंने ऐसा भी बोला कि हम तो प्रशासन की तरफ से काम कर रहे हैं, लेकिन जो अभी चुने गए जो सरपंच है उनको भी अपने साथ कोऑपरेट करना चाहिए. और सरपंच की भी फर्ज बनती है कि वो क्या उनके जो एक विलेज में 7 से 8 करोड़ का फंड उन्होंने बताया. जैसे कि बड़ी गांव में कुछ, बड़ी दमन में कुछ कम है, लेकिन छोटी दमन में तो काफ़ी 7 से 8 करोड़ का फंड आता है. तो डीसी साहब ने बोला कि सरपंच को भी देखना चाहिए कि इतना फंड आता है तो लोगों के अधिकार के लिए उनमें जो काम होने चाहिए वो क्यों नहीं हम करें. तो सरपंच की फर्ज बनती है कि उनका फंड जो है वो खास तौर पे लोगों के लिए खर्च किया जाए. और लोगों का भी ये बनता है कि लोग भी उनके पास जाए और पूछे कि जो फंड दिया गया है उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं और किस चीज़ के लिए हो रहा है. तो लोगों का भी ये बनता है कि लोग भी उनके पास पहुंचे और पूछे कि हमारे ये काम बाकी है, ये है, वो है. तो उनको फंड का पूरा उपयोग लोगों के लिए करना चाहिए और मिलना ही चाहिए, क्यों नहीं. तो हम चाहते हैं कि जैसा प्रशासन हमें सहयोग देता है तो वैसा ही सभी गांव के सरपंच भी हमें सहयोग दे और लोगों के जो अधिकार है वो लोगों तक पहुंचे. हमने उनसे बोला कि दमन के अंदर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उन्हें जो नर्स है उन्हें जो दमनदीप की जो सिस्टर्स जो स्टडी करती है उनको पहला चांस मिलना चाहिए. तो उन्होंने हमें बोला कि पहला चांस दमन के लिए
जो दमन की नर्स है उनको ही मिलता है और बाकी उसके बाद गुजरात को मिलता है, तो हम उन पे भी उनके साथ सहमत है। आज उन्होंने हमें अच्छा रिस्पांस दिया है, तो क्यों नहीं हम भी जागरूक हो जाए, दमन की जनता पूरी जागरूक हो जाए और जो हमारे अधिकार है उनके लिए हम लड़े। ये बीच जो है दमन और बरगढ़ देवका बीच और जमकोर बीच, तो उन्होंने हमें बोला कि दमन के अंदर जो 24 गांव है वो पूरे गांव के अंदर जितने भी टॉयलेट्स है वो मतलब कि लोगों के अधिकार जो है, जो रेजिडेंट्स है दमन के लोग जनता, उनको पहले सुविधा मिली जाएगी, उसके बाद टूरिस्ट को। सेकेंड नंबर पे टूरिस्ट आती है, फर्स्ट नंबर पे दमन की जनता आती है, तो पहले प्रायोरिटी अपनी दमन की जनता को मिलेगी और उसके बाद टूरिस्ट को मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि पहले हम गांव के लिए टॉयलेट्स बनाएंगे, उसके बाद हम टूरिस्ट के लिए भी काम करेंगे। मंगलवार को वापी की ज्ञानगंगा इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंस्टेंट वैरायटी फूड मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जहां इस प्रतियोगिता में स्कूल के विभिन्न कक्षा के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिन्हें 4 विभिन्न ग्रुपों में विभाजित किया गया। इस दौरान छात्रों द्वारा गैस और तेल का उपयोग किए बिना ही एक से बढ़कर एक सुंदर एवं स्वादिष्ट पकवान तैयार किए गए। ऐसे में एक ग्रुप की ओर से विभिन्न 8 चीजें बनाई गई थी। वहीं इन तमाम पकवानों को चखकर छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें सर्वश्रेष्ठ पद भी दिए गए, जहां इस प्रतियोगिता को लेकर तमाम छात्रों का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। गौरतलब है कि आज के युग में सभी बच्चे फास्ट फूड खाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जिसके बजाय वे इस प्रकार के पौष्टिक आहार ग्रहण करें तथा उनकी प्रतिभा उजागर हो, उसी उद्देश्य से पिछले 6 सालों से यह आयोजन किया जाता है। जो इंस्टेंट वैरायटी फूड मेकिंग कंपटीशन था हमारे स्कूल के अंदर, ये लास्ट हम लोग 6 साल से चला रहे हैं। तो पहले साल से जब हमने चलाया उसके बाद सब में और अपने काफ़ी डिफरेंस है, हमारे बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। और ये जो कंपटीशन रखने का मेन है तो यही है कि हमारे बच्चों में और आज के जो जनरेशन है जो फास्ट फूड खाने में ज़्यादा उन लोग को अच्छा लगता है, तो ऐसे बच्चों को अगर हम लोग ये खुद की बनाई चीज़, और ये बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम लोग भी ऐसी चीज़ बना सकते हैं, और बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ बनाई है बच्चों ने। तो दूसरी बात है कि ये जो कंपटीशन है इसके अंदर बिना कोई तेल के या फिर बिना कोई गैस यूज़ किए बिना ये बच्चे काफ़ी अच्छी चीज़ बनाते हैं। और इनका मुख्य हेतु यही है कि हमारे बच्चों में स्टडी के अलावा दूसरा भी कुछ जो भी उसके पास दूसरा ज्ञान है उसको बाहर निकालना, और इससे उन लोग को स्कूल में भी अलग अलग ऐसी डिफरेंट एक्टिविटी करवाते हैं, तो उसको स्कूल में पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा लगता है और उनको ऐसी एक्टिविटी से उनका जो सामान्य ज्ञान है वो भी बढ़ता है। We celebrating here food making competition. A part of this study, we are doing here many activities. Today we are celebrating this food making competition, and there are 4 houses. They making different types of recipes. And these activities improve our skills and knowledge, and we are enjoying here so much. And along the study, we are doing all activities here. मोटे दमन फुटबॉल ग्राउंड पर खेल विभाग द्वारा 5 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जहां खेल सचिव एवं एसडीपीओ रवि कुमार की अध्यक्षता में इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। बता दें कि इस टूर्नामेंट में दमन की विभिन्न स्कूलों को मिलाकर कुल 19 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिनके बीच 8-8 ओवर की मैच खेली जाएगी। ऐसे में रवि कुमार ने टूर्नामेंट के इस प्रथम दिन पर सभी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया, साथ ही उन्हीं के हाथों टॉस उछालकर एवं बल्लेबाजी कर टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। इस दौरान सभी खिलाड़ी मैदान पर खेल का बेहतरीन प्रदर्शन करते नजर आए और सभी बेहद उत्साहित दिखे, जहां इस टूर्नामेंट के तहत विजेता छात्रों को जिला एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी भेजा जाएगा। इस मौके पर खेल सचिव रवि कुमार के अलावा खेल अधिकारी नियाज कदरा, कांति पटेल समेत अन्यों की उपस्थिति रही। दमन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के माध्यम से अंडर 17 बॉयज़ क्रिकेट टूर्नामेंट हम लोग करवा रहे हैं, जो कि टेनिस बॉल है और 5-6 दिन चलेगा ये। और इसमें हम लोग टोटल 19 टीम्स हैं जो दमन के वेरियस स्कूल्स हैं उनसे आएंगी। एक दिन में 4-5 मैच के करीब हम लोगों का है कि जितना भी टाइम स्क्वीज इन हो सके, और जो टीम अच्छा परफॉर्म करती है, जो भी विनर होगी, उसको हम लोग आगे सेलेक्ट करके SJ5 में भेजेंगे। हमारी तरफ से जो रेगुलर है, जैसे ट्रॉफी है वो तो है ही, बाकी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि और कैसे इनको किया जाता है, कुछ नया करने की कोशिश हम देखते हैं, इस बार डिसाइड करेंगे। जो हमारा बजट होता है, जो भी रिस्ट्रिक्शन है, उसके हिसाब से। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
दानह के पंचायत चुनाव में कांग्रेस की बहुमतों से हुई जीत। वापी में दिन दहाड़े लाखों की लूट कर फरार हुए लुटेरे। नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाला युवक दमन पुलिस के कब्जे में। और डीएमसी मॉडल स्कूल की अव्यवस्थाओं को एसपी दमनिया ने किया उजागर। फिलहाल यूट्यूब न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए रेशमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।